امام سے بتا ڈسکشن ود بردر سید نور الدین، یہ ہو گیا اسٹارٹ. اسماعیلی بھائی ہیں ہمارے سید نور الدین، ان سے آج ڈسکشن ہوگا کہ کیا آپ امام سے مدد مانگتے ہیں. سید نور الدین بھائی. مدد تو کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، امام تو ایک انسان ہے، وہ تو نہ نبی ہے نہ ہی خدا. امام جو خان جو ہے ہمارے امام ہے، تو جو عبادت کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی. اور ٹھیک آپ نے بھی جو کچھ بیچ میں کچھ آپ نے کہا تھا کہ ان کو جمع خانوں میں پڑھایا جاتا ہے، میں خود ہی جمع خانہ صبح و شام جاتا ہوں. آپ اس طرح باتیں کر رہے ہیں اس سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جمع خانہ جاتی ہے. آپ کو کیسے پتا ہمارے جمع خانے میں کیا ہوتا ہے؟ صبح و شام جمع خانہ میں جاتا ہوں، مجھے وہاں پہ کبھی یہ نہیں سکھایا کہ امام جو ہے صراط مستقیم بنیں گے تو ادھر جو ہے جنت کا ٹکٹ آپ کو جو امام دیں گے. امام جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے آپ کی جنت میں جو ہے جنت جانے کے لیے امام جو ہے سفارش کریں گے. یہ مجھے کسی نے نہیں سکھایا. آپ کہہ رہی ہے کہ اسماعیلیوں کو جمع خانے میں سکھایا جاتا ہے کہ امام جو ہے ان کو جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں. اللہ تعالیٰ سے سفارش نہیں کریں گے، البتہ رسول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات اب آپ کی بات مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے، آپ کی بات مکمل ہوگی. قاسم دانیال بھائی. جی، نحمد و نصلی علی رسول الکریم. محترم میرے بھائی، میں آپ کے کتابوں کے حوالے سے آپ کی نماز سے یہ ثابت کر سکتا ہوں آپ کو، بلکہ اسکرین پہ لا کے ہم ابھی دکھا بھی سکتے ہیں کہ آپ اپنی نماز میں امام سے براہ راست بغیر کسی وسیلے کے مدد مانگتے ہیں، جو کسی زمانے میں اس گروپ میں جتنے افراد تھے سب جماعت خانے میں جا کے وہی چیز پڑھتے تھے. نمبر 1. نمبر 2، آپ جو ہے آپ نے کلمے کو تبدیل کیا. مسلمانوں کا جو سواد اعظم ہے، وہ بہت بڑی تعداد میں جو مسلمان اس وقت سے اب تک ہے 2 ارب تک، ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے اس کے ساتھ ایک چیز علی اللہ ایڈ کیا. وہ اس کی تشریح میں تفصیل میں آپ کی کتابوں میں بعض نے امام کو ہی حضرت علی کو ہی اللہ کہا ہے. اس کی ایک ویڈیو فارسی میں جس کو چترالی زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ معراج کے شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرش پر گئے، عرش پر جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. اس سے پوچھا آپ ادھر؟ کہا کہ اے محمد، فرش پہ بھی میں ہی ہوتا ہوں، عرش پہ بھی میں ہی ہوتا ہوں، یعنی میں ہی خدا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کے گنان میں پڑھا جاتا ہے رب تو رحمان تو یا علی مشکل کشا. 1000 دفعہ جماعت خانوں میں ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے. میں آپ کو صدر الدین کے وہ گنان دکھا بھی سکتا ہوں، گنان کے ہمارے ایک پروگرام میں وہ سب موجود ہے. دیکھیں، اللہ کی ذات میں اختلاف ہے، کلمے میں اختلاف ہے، رسول پہ آتے ہیں. آپ کا امام معصوم ہے یا خطا ہوتا ہے اس سے؟ یہ ایک سوال، اس کا جواب آپ اپنی باری میں دے دیں گے. اگر ہمارے نالج کے مطابق امام معصوم ہے، جتنے ائمہ ہے آپ کے عقیدے کے مطابق معصوم ہے. جب رسول اللہ کے بعد کسی کو معصوم مانا گیا، مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق رسول اللہ کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، سب سے خطا ہو سکتا ہے، سب خطا کار گناہ گار ہو سکتے ہیں. صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم تھے. تو آپ کے عقیدے کے مطابق اگر یہ معصوم ہے امام، تو پھر آپ نے نبوت کو ختم نہیں مانا، آپ اور بھی معصوم مانتے ہیں. ان کے بعد 49 معصوم مانتے ہیں، آگے 50 55 56 100 تک پتہ نہیں جہاں تک آپ لے جائے. دیکھیے، یہ موٹی موٹی چیزیں، یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ادھر بیٹھ کے اپنی طرف سے بات کر رہے. یہ جماعت خانوں میں یہ گروپ میں جتنے افراد ہیں سب کر چکے ہیں، سب پڑھ چکے ہیں، یہ گنان بھی، یہ کلمہ بھی. اب علی اللہ کے ترجمے پہ ہم نے بہت سارے لوگوں سے اس پہ بات چیت ہو گئی ہے. آپ امام کو گائیڈ نہیں مانتے ہیں، لیکن اگر آپ ہنزہ اور چترال کے کسی ایک کونے میں ہے، چونکہ وہاں پر مسلمانوں کے اجماعی عقیدے ایسے ہی ہے. آپ نے کہا میں قرآن کو مانتا ہوں. بھائی، قرآن میں 70 دفعہ نماز کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اجماع امت نے کر کے دکھایا. اس میں ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، روزے کا نام کھانے پینے سے رکنا ہے. اس کو آپ نہیں مانتے. من استطاع الیہ سبیلا، جس کی استطاعت میں وہ حج کے لیے جائے بیت الحرم، وہ آپ کے ہاں امام کو دیکھنا ہے. دیکھیے، آپ کے عقیدے کلمے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات سے لے کر آخر تک مظہر اللہ کی وضاحت آپ کرے. اللہ کا مظہر، اللہ کا نور، نور مجسم. قرآن کی آیتوں کو آپ کے مشنری صاحب اس پر فٹ کرتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اس سے امام مراد ہے، تو اللہ کا جز قرار دیا. نور کو مجسم کر کے کہا کہ اللہ اور امام کو ایک ماننا توحید ہے. آفتاب حسین مشنری صاحب کا ریکارڈڈ
اور جو ہے نا PDF میں ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے. جب آپ امام کو اس درجے میں یاد کرتے ہیں, ان کے سجدے کو اللہ کا سجدہ کہہ کر سجدہ بھی کرتے ہیں, عبادت ان کی کرتے ہیں, ان سے مدد مانگتے ہیں, آپس میں ملتے یا علی مدد کہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علی سے نہیں بلکہ ہم حاضر موجود امام سے ہی مدد مانگتے ہیں. آپ کے بہت سارے مشتریوں کے ساتھ ہمارا بات چیت ریکارڈڈ موجود ہے. جب یہ چیزیں اتنے مختلف ہے, آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں؟ جی سید نور بھائی. جو انہوں نے کہا کہ نماز کا 70 دفعہ حکم ہے, نماز میں مانتا ہوں نماز کا حکم ہے, میں نے بھی ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے قرآن ٹھیک کہتے وہ نماز ہم پڑھتے 70 دفعہ حکم ہے واقعی میں, تو میں نے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا ہے, نماز میں ہے تو نماز پڑھتے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ روزے کی ذکر کر رہے ہیں, روزہ ہم لیتے کھانے پینے سے وہ کرتے صبح اذان سے لے کے شام تک, تو یہ بھی یہ صاحب غلط کہہ رہے ہیں. روزہ تو میں لیتا ہوں, نماز میں پڑھتا ہوں, اور یہ کہہ رہے ہیں کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول, یہ جو دوسرا کلمہ جو اپنی طرف سے لے کے آئے ہیں یہ شرک کر رہے ہیں. یہ جو بندہ ہے, یہ جو کیا نام ہے اس کا, شیخ صاحب, کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ امام کو خدا مانتے ہیں, ارے یار امام کو نعوذ باللہ امام کو جو ہے خدا نہیں مانتے, ہم گائیڈ مانتے ہیں, صرف وہ رہنمائی کے لیے ہے, اس وقت وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. جس طرح یہ کووڈ-19 ہے اس سے کیسے بچنا ہے, باقاعدہ ان کے فرمان آتے ہیں جمع خانوں میں, وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کووڈ-19 کے حوالے سے اس کا فرمان آیا تھا کہ میں نے بھی ویکسین لگائی, آپ بھی ویکسین لگائیے, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان, ہم اس کو انسان نہیں مانتے. وہ خود کہہ رہا ہے میں انسان ہوں, میں کووڈ-19 سے بچنے کے لیے ویکسین لگائی ہے, آپ بھی لگائیے. اور اس کے علاوہ وہ فرمان کرتے تمباکو نوشی کا, کہتے ہیں کہ وہ تمباکو نوشی شراب کا نہ ہی کاروبار کرنا ہے اور نہ ہی استعمال کرنا. اس کے علاوہ وہ مختلف چیزوں سے گائیڈ کرتے رہتے ہیں زمانے کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے نور اللہ بھائی, آپ مائک انمیوٹ کر رہے ہیں, آپ بات کیجیے گا, کلمے کے حوالے سے کیجیے گا. جنہوں نے کہا کہ یہ کلمہ شیخ صاحب نے خود بنایا ہے, مولانا قاسم نے خود بنایا ہے, اس پہ ذرا ان کی وضاحت کر دیجیے کہ یہ کلمہ ہم دکھا کہاں سے رہے ہیں اور یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے. جی نور اللہ بھائی. بالکل جی, دیکھیے جو اسماعیلی کلمہ ہے, جہاں تک جب میں اسماعیلی تھا تب وہاں تک میں جانتا ہوں, ان کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی الامیر المؤمنین علی اللہ. سید نور بھائی میں کیا صحیح کہہ رہا ہوں, یہ آپ کا کلمہ نہیں ہے سید نور بھائی؟ آپ غلط بول رہے ہیں, آپ نے کوئی غلط کتاب پڑھا ہے. تو یہ آپ کا کلمہ نہیں ہے, علی الامیر المؤمنین علی اللہ, یہ آپ کا کلمہ میں ایڈ نہیں کیا ہوا آپ نے. یہ ہر کلمے میں کچھ ہوتے ہیں نا. بہن ذرا وہ کتاب دکھا دینا جو کلمہ ان کی دعا کے اندر موجود بھی ہے. جی ان کی دعا کے اندر یہ کلمہ موجود ہے, اور ہم دکھا دیں گے کہ سید نور بھائی جو ہے وہ جماعت خانے میں جو کہتے ہیں کہ میں صبح شام جاتا ہوں, تو ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کلمہ دن رات اپنے جماعت خانے میں پڑھتے ہیں. میں اسکرین پہ دکھا دیتی ہوں. بالکل, ہم تو نہیں پڑھتے, پتہ نہیں آپ جاتے ہیں جماعت خانے؟ جی جاتا ہوں. آپ دعا پڑھتے ہیں؟ آپ دعا پڑھتے ہیں؟ جی پڑھتے. دعا میں دکھا دوں گی آپ کو میں, پھر کیا کہیں گے. پہلے تو یہ بتائیے کلمہ شرکیہ ہے کہ صحیح ہے؟ کیا یہ کلمہ شرکیہ ہے؟ اگر کوئی علی امیر المومنین علی اللہ پڑھے تو وہ کلمہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ جی وہ آپ صحیح کہہ رہی ہے, مگر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, بس ختم ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ علی اللہ والا کلمہ ہے تو وہ صحیح بندہ صحیح بول رہا ہے کہ شرک کر رہا ہے؟ نہیں وہ شرک کر رہا ہے, وہ جو کر رہا ہے, وہ جو بھی کر رہا ہے وہ غلط. چلے ٹھیک ہے, ایک منٹ ہولڈ کیجیے. اب یہ بھائی نے مسئلہ وہ کھولے نا, اس بیچ میں اتنا عرض کروں گا. یہ جو سید نور بھائی یہ کہہ رہے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, میں جو ہے نا کھاتا پیتا نہیں ہوں, صبح شام تک میں روزے سے رہتا ہوں. اگر یہ سب آپ کر رہے ہیں تو آپ اسماعیلی نہیں ہیں, آپ تو سنی ہیں پھر. نہیں سر جی میں اسماعیلی ہوں. ہمارے مذہب میں ہمیں سکھایا جاتا ہے روزہ, نماز, حج, زکوٰۃ, یہ ساری چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہے. چلے دیکھیے سید بھائی اسکرین پہ چیک کیجیے گا, یہ آپ کی اسماعیلی دعا. میں ذرا اسٹارٹنگ سے دکھا دیتی ہوں آپ کو. جی یہ دیکھیں, یہ ہے اسماعیلی دعا. اطرب کی ڈرائیو ہے, یہ آپ کی اطرب کی شیعہ امامی اسماعیلی طریقہ ریلیجس ایجوکیشن بورڈ دعا. پھر امام کا فرمان, حصہ اول, یہ آپ کا حصہ دوم, اور حصہ نمبر, یہ دیکھیے حصہ نمبر 2 میں آپ کا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین علی اللہ. نظر آیا آپ کو سید نور بھائی؟ نظر آیا علی اللہ؟ جی یہ دعا کا یہ دعا کا حصہ ہے. یہ دعا غلط ہے؟ نہیں یہ دعا کا حصہ ہے, دعا صحیح ہے. یہ دعا کا حصہ ہے نا؟ اچھا یہ دعا کا حصہ ہے.
तो दुआ कलमा नहीं कैसे? है, तो इसमें कलमा अली और अल्लाह लिखा हुआ है, इसमें कलमा लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीउन अमीरुल मोमिनीन अली अल्लाह लिखा है ना? जी वो दुआ कैसे है? तो फिर आप इस कलमे का क्या करेंगे? मेरे पास जी अभी ये किताब नहीं पढ़ी है, वरना मैं किताब कहीं से आपको ढूंढ के देता, क्योंकि किताबें अलग अलग जगह प्रिंट होती है, तो कई ये होता है कि बदनाम करने के लायक सुन्नी फिरका को बदनाम करने के लिए दूसरे जो इस्माइली फिरके वाले या नहीं नहीं भाई, ये आपकी इतरेब की किताब है, इतरेब की किताब है आपकी, रिलीजियस एजुकेशन बोर्ड, आपका जो आगा खान का रिलीजियस एजुकेशन बोर्ड है इतरेब, उसकी ये दुआ की ये किताब है। और ये किताब जो है ये पाकिस्तान में नाजिल हुई है आपके इस्माइली जमात खानों में, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी इस्माइली ये दुआ की किताब नहीं है? बाकी ये तो मैं सही है, मैं कह रहा हूँ ये दुआ का हिस्सा है, अली अमीरुल मोमिनीन अलीउल्लाह है, वो दुआ को आगे कंटिन्यू करने के लिए सही है, लेकिन कलमा जो है कलमा अलग है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो ये अच्छा क्या है? जरा मुझे आप जरा बताइए, आपके पास जो दुआ की किताब है वो जरा हमें जरा पेश कीजिए ना, हमें जरा बताइए, उसका स्क्रीनशॉट या कुछ फोटो भेजिए ताकि बहन हमारी स्क्रीन पर शो कर देंगी, जहाँ पर वो कलीमा आप जो बता रहे हैं वो है, जरा बता दीजिए ताकि हम स्क्रीन पर शो कर दें। अगले प्रोग्राम में वो कर दूंगा, मगर आज मैं घर में नहीं हूँ, तो घर में मेरे पास है वो, मैं अगले प्रोग्राम में वो पढ़ दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है, मैं घर पे बात तो कंक्लूड करते हैं, अब बात तो खुल गई है, अब ज्यादा इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। कलमा सामने है, ये इस्माइली दुआ है, इसमें अलीउल्लाह लिखा हुआ है, इन्होंने पहले कह दिया था सैयद नूर भाई ने कि जो ये पढ़ेगा वो शिर्क करेगा, तो अब मेरे ख्याल से कोई बात तो बची नहीं है, तो ये मानते हैं कि ये दुआ जमात खाने में पढ़ते हैं, इन्होंने ये भी माना कि ये हमारी दुआ का वो हिस्सा दुआ है। का हिस्सा है, कलमा तो भाई दुआ कलमा का और दुआ क्या अलग होता है? चीज है, कलमा अलग, ये कलमा नहीं है, ला कलमा इलाहा अलग चीज, इल्लल्लाह, आपको ये कलमा नहीं है, ला ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह। बड़े जी पढ़े, कलमा है, ये हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा है, तो ये नीचे क्या है? ये जो अली आपकी अमीरुल मोमिनीन। ये दुआ है, और उसके नीचे भी है अल्लाहुम्मा लका सुजूदी बता, इसका जो है मानी आप बता दें। अच्छा, एक बात सुने, चले आप कहते हैं ऊपर का जो हिस्सा है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये आप कहते हैं ये कलमा है, जो नीचे का हिस्सा है अलीउन अमीरुल मोमिनीन अली अल्लाह, ये दुआ का हिस्सा है, ठीक है? जी जी जी, तो जब अलीउल्लाह बोल दिया तो ये दुआ का हिस्सा भी अगर हो तब भी शिर्क नहीं है? नहीं शिर्क नहीं, ये मतलब जस्ट अली को मतलब एक वसातत है, वो इमाम है, डायरेक्ट मतलब अली को अल्लाह नहीं बोल रहे, ये नहीं कह रहे कि अली अल्लाह है, अली इमाम है, अली का अलीउल्लाह डायरेक्ट का माना आप हमें समझा दीजिए, अलीउल्लाह का माना ना, इसका ये मतलब है यार, मतलब खुदा तक पहुंचने का वो एक रास्ता है, जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरिया थे ना, इसी तरह हजरत अली अलैहिस्सलाम भी एक जरिया है। अलीउल्लाह का ये माना है जी जी, वो हमें एक जरिया है वो। यार, जरिया होता ना, वासिततुल्लाह, जरियतुल्लाह, ऐसे कोई अल्फाज होता ना, अलीउल्लाह तो नहीं होता। ये इसी तरह है, नहीं क्योंकि मौलाना साहब, अगर हजरत अली मिन अल्लाह होता, अली मिन अल्लाह, तो फिर समझ में आता कि भाई ये हजरत अली को जो है जरिए के जरिए अल्लाह को ऐड करके पुकार रहे हैं, लेकिन ये अली उल्लाह जो है ये डायरेक्टली अली को अल्लाह करार दिया है। अरबिक में इसका मतलब जो है, आप गूगल भी सर्च करेंगे, इसका ट्रांसलेशन अली उल्लाह का आता है, अली अल्लाह, यानी कि अली अल्लाह है। चले इस अली मौजूद मिन को अल्लाह, यहाँ से समेटते हैं, बात जो है ना हमने भी की, उन्होंने भी की, लोग सुनने वाले बाद में सुनने वाले सबको समझ आ जाएगा। एक कदम आगे चलते हैं दूसरे अकीदे पर, क्या इमाम मासूम है या नहीं है? है, क्या प्रूफ है, किस दलील से आप साबित करते हैं इमाम मासूम है? वो जो है हजरत आले रसूल है वो। अच्छा, आले रसूल मासूम है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने जाने से पहले हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को जो है इमाम मुकर्रर करके गए थे। मन कुंतु मौला व अली, कौन सी आयत से साबित है? मन कुंतु मौला व अली मौला, ये आयत है? नहीं आयत नहीं है, हदीस है, रसूल हदीस। इसकी सनद क्या है पता है आपको? ये खबर वाहिद है, खबर वाहिद उस हदीस को कहते हैं ना जिसको रिवायत करने वाला किसी दौर में एक बंदा, किसी दौर में दो बंदा, और वो जो है ना अकायद में काबिल कबूल नहीं होता है खबर वाहिद। अकायद आपके बुनियादी मजहब का एक बुनियादी अकीदे के लिए आपको मुतवातिर हदीस, मजबूत रेफरेंस पेश करने की जरूरत होगी। कम से कम तो कुरान की आप इतने पूरे दीन के लिए, इतने बड़े अकीदे के लिए कि अहले बैत मासूम है, वो जो कुछ कहे ठीक होगा, इसके लिए आपको आयत कुरान मजीद से कम 10-15 आयतें तो लानी चाहिए थी। लेकिन आप एक ऐसी हदीस को ला रहे हैं जिसके बारे में बाज मुहद्दिसीन का कौल है कि ज़ाइफ है, बाज कहते खबर वाहिद है, और चलो हम उसको सही भी साबित करें। मन कुन्तु मौलाहु का माना है
کہ جو علی سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرے، ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ مولا کو خلیفہ کے معنی میں لیتے ہیں، امام کے معنی میں لیتے ہیں، اس وقت جب من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مولا موجود ہے، آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے مولا مانتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرے بعد میں مانو، تو وہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کنتو کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کنتو ماضی استمرار کے لیے آتے، کان یکون سے ہونا، کنتو مطلب جس کا میں ہوں، یکون نہیں آیا کہ اس کا بعد میں علی بنے گا، بلکہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جن کا میں دوست ہوں، وہ آپس میں لڑائی نہ کرے. یہ لڑائی کے موقع پہ کہا گیا تھا، علی سے لڑائی نہ کرو، کیونکہ یہ جو مجھ سے محبت رکھے وہ علی سے بھی محبت رکھے. الحمدللہ ہم سب ان سے دل و جان سے محبت رکھتے ہیں. لیکن یہ کیا پروف ہے کہ اس کے بعد دوسروں کے لیے بھی کہی ہے اور علی کے لیے بھی کس لفظ سے ثابت کر رہے ہیں؟ یا اس کے بعد جو خاندان میں لوگ آئے ہیں، پہلے تو معصوم ہونے کو ثابت کرو، ولایت کے پیچھے بعد میں جائیں گے. ہم معصوم ہے، خطا سے پاک ہے، ان سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے. دین کی بات یہ بتائے، دین کی وہ آپ کے لیے حجت ہے، اس کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے. جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے، وہ تو قرآن کے نص سے ثابت ہے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں. آپ اہل بیت کو معصوم قرار دینے کے لیے قرآن کی آیت پیش کرے، ایک جو ہے نا خبر واحد سے اتنا بڑا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا ہے میرے بھائی. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ نبیوں سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہے، کبھی ان سے خطا غلطی نہیں ہوئی ہے. اگر ہوئی بھی ہے وہ کبیرہ گناہ نہیں، غیر مقرب کام، مطلب یہ ہے نا کہ دو کام دونوں جائز ہے، ایک کو اختیار کیا ایک اولا. غیر اولا کام انبیاء سے ہو سکتا ہے، لیکن کبیرہ گناہ کبھی بھی انبیاء سے صادر نہیں ہوتا ہے. جی پاپا، اسی طرح ہمارا بھی یہی ہے عقیدہ ہے. انبیاء بھی جو تھے ان سے کبیرہ گناہ نہیں ہوتے تھے، چھوٹے موٹے گناہ ہو سکتا ہے، یہ کہنا بھی غلط ہوگا، ہو سکتا ہے نبیوں سے بھی ہوئے ہوں گے کچھ گناہ، نہیں ہو سکتا ہے، نبی معصوم ہوتے ہیں، اس لیے تو ان کے اعمال ہمارے لیے حجت ہوتے ہیں. ابھی تو آپ نے کہا انبیاء سے جو غلطیاں ہوئی، چھوٹی موٹی غلطیاں، کبیرہ گناہ نہیں وہ ہوں گے. چھوٹی موٹی نہیں، خلاف اولا کام صرف دونوں کام جائز ہے نا، دونوں ان میں سے ایک زیادہ اچھا ہے ایک کم اچھا ہے. کم اچھا کوئی خلاف اولا کام انبیاء سے صادر ہو سکتا ہے، کبیرہ گناہ خطا وہ ایک غلط اللہ کا حکم لوگوں کو بتائے، یہ کبھی بھی کسی نبی سے نہیں ہوتا ہے، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. یہ قرآن کا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا. انبیاء کے بعد کوئی فرد معصوم نہیں، صحابہ بھی اہل بیت بھی، اور کوئی معصوم نہیں ہے، کیونکہ معصوم کی ضرورت ہی نہیں رہی نا. جب دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دی قیامت تک کے لیے، قرآن محفوظ فرما دی، خود حفاظت کا وعدہ کیا، پھر معصوم کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر تو یہ جو علماء کرام آج کل فتوے دے رہے ہیں یہ بھی غلط، ان کو بھی فتوے بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کو کہہ رہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قرآن میں یہ ہے آیت، اس کا ترجمہ بتاتے ہیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترجمہ کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کر سکتا. تو ہمارے آخان بھی یہی کرتے ہیں، یہی کام کرتے ہیں، قرآن کا ترجمہ. نہیں یار نہ کرے یار، ہم خود ادھر سے ہو کر آئے، اس مشرب سے آپ ابھی پی رہے ہیں نا، ہم سب وہ پی چکے ہیں. آپ اسماعیلی حالانکہ نا آپ نے کہا نا ہم نماز پڑھتے ہیں، نہیں، انہوں نے کہا کہ آج یوم القیامہ ہے، میں تمہیں شریعت کے تمام آزاد پابندیوں سے آزاد کرتا ہوں، روزے معاف کرتا ہوں، حج معاف کرتا ہوں، جو ہے نماز ختم، سب کچھ سے تم آزاد ہو. تو اس دن جو ہے نا یوم القیامہ منایا گیا باقاعدہ طور پر. یہ ہمارے پاس آپ کے مشنریوں کے واز موجود ہے. نہیں، میں نے تو کبھی اس طرح آواز نہیں سنا. وہ کچھ بٹکے ہوئے لوگ ہیں، ہاں میں کہتا ہوں، وہ کچھ بٹکے ہوئے لوگ سنیوں میں بھی ہے، اسماعیلیوں میں بھی ہے، شیعوں میں بھی ہے، وہ ہو سکتا ہے ان کا کوئی اور گروپ ہے، مگر اچھا اگر وہ بٹکے ہوئے لوگ آپ کے بڑے بڑے واعظ نکلے، پھر آپ ان سب کو علل اعلان بٹکے ہوئے کہیں گے نا. اگر آفتاب حسین مشنری نکلے، وہ اگر وہ علی واعظ نکلے، اگر وہ کمال الدین نکلے، خلیل اندانی نکلے، یہ بڑے بڑے لوگوں کے اگر ہم لائے، یار ہمارے بڑے بڑے علماء کرام جو ہے نا ہمارے دین کے مضبوط دارالافتاء، وہ کبھی بھی فحش غلطی کے کسی کام کی حمایت نہیں کرتے. چھوٹے موٹے مولوی جو ہے نا اپنے مشہوریت کے لیے کبھی کوئی فتنہ اٹھانے کے لیے بات کرے، الگ بات ہے. آپ کے جو بڑے بڑے واعظ ہیں، اچھا آپ کی کتابوں کے حوالے سے بھی ہم ثابت کر سکتے ہیں یہ چیزیں. لیکن مولانا قاسم صاحب ان کے امام تو ایک ہے نا. جب ایک امام ہے تو الگ الگ طریقے کیوں ہیں؟ ابھی کوئی چترا والا الگ طریقہ کرتا ہے، کوئی انڈیا والا الگ طریقہ کرتا ہے، اسماعیلی، یہ الگ الگ کیوں ہیں ایسا؟ سید بھائی بہت اچھا سوال. الگ
नहीं है, वो कोई एक ग्रुप बीच में कोई एक बंदा निकला था, उसने खुद को जो खुदा कहा था, उसको साइड कर दिया गया। वो इस्माइली मजहब का हिस्सा नहीं है। वो कौन जो है वो आप बंदा? किताबें पढ़ी है, जिन लोगों का आप नाम ले रहे हो, वो वही भटके हुए लोग हैं। मौलाना नसीरुद्दीन हुदाई को शायद आप जानते होंगे, हुदा का था वो। उनका नाम ही नहीं लिया हमने इतरेब का पूछा आपको। इतरेब की जो किताब है दुआ की आपकी, क्या वो भटके हुए हैं? किसकी? इतरेब आपका जो एजुकेशन बोर्ड है, रिलीजियस एजुकेशन बोर्ड, इस्माइली रिलीजियस एजुकेशन बोर्ड जो है, जहां वो दुआ की किताबें छापते हैं, इस्माइली दुआ की जो आप जमात खाने में पढ़ते हैं, क्या वो भटके हुए हैं भाई? वो तो सही है, वो तो सही है। हाँ, तो फिर दुआ अभी जो दिखाई आपको वो इतरेब की ही दुआ है ना भाई। जो स्क्रीन पर दुआ आपको दिखाई वो इतरेब की ही दुआ है। सैयद नूर भाई ने कहा कि जो है ना अहले बैत मासूम होते हैं, इनसे कबीरा गुनाह नहीं होते हैं, लेकिन हमें कुछ इश्कालात है। हमने देखा है कि पाकिस्तान के अल हबीब बैंक जो है ना वो खान साहब ने उनके शेयर खरीदे हैं और वो टोटली सूदी कारोबार होता है। इसी तरह सरीना होटल है इस्लामाबाद में, उसमें शराब बार है, बाकायदा तौर पर मुस्लिम गैर मुस्लिम सब जाके शराब पीते हैं। इसी तरह घोड़दौड़ सवारी होती है, उसके वीडियो मौजूद है। खान साहब जीत गए, उनको पैसे दिए गए तमाम जो जमा हो चुके थे। इसी तरह जो है कुछ जो है ना कुछ ऐसी चीजें हैं, उसको हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि उनको भी सामने लाएंगे। ये इनके बाकायदा प्रूफ मौजूद है, सबको पता है। तो यार ये तो कुरान और हदीस की रूह से ये चीजें कबीरा गुनाह में आते हैं। आप इनके बारे में क्या कहते हैं? एचपीएल बैंक के हवाले से जो आपने कहा है ना, वो बिजनेस है। बिजनेस बैंक मतलब बाकायदा होते हैं गवर्नमेंट के साथ, वो बिजनेस करते हैं, उधर लोग जॉब्स करते हैं। डायरेक्ट जो वो रजिस्टर्ड इदारे होते हैं, वो उनका मतलब सूद नहीं कह सकते आप उसको। बैंक का जो कारोबार है उसको आप सूद नहीं कह सकते भाईजान, क्योंकि लाखों काम करते हैं, लाखों जो है उस पर चलते हैं। अभी एचबीएल बैंक से देखो, मेरे ख्याल से कोई 15,000 मुलाजिम है पाकिस्तान में एचबीएल बैंक के, तो 15,000 लोगों का घर चलता है उससे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो सूद है? बैंक का जो कारोबार होता है वो सूद नहीं होता है। तो इसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि जो सरीना होटल में ये मिलता है वो मिलता है, वो कारोबार है उनका, उनको कारोबार वो खुद नहीं संभालते, वो तो उधर है पाकिस्तान में उनका संभालने वाला है कारोबार कोई और। वहाँ पे और जो चीजें रखी हुई है वो इंटरनेशनल होटल है, इंटरनेशनल लेवल पर। वहाँ पे अंग्रेज भी आता है, वहाँ पे हिंदू भी आता है, वो जो सब चीजें हैं उनके लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है वहाँ पे। अच्छा, तो आप पहले मान रहे ना कि हाजिर इमाम के होटल्स में शराब बिकती है, पहली बात तो आप ये मान रहे हैं। दूसरी बात आप ये मान रहे हैं कि बैंक में सूद का कारोबार भी होता है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे एक इस्माइली भाई सैयद नूर साहब दोनों बातें बड़े आराम से मान गए कि इनके इमाम का सूदी कारोबार भी है और शराब का कारोबार भी है। आगे बात कीजिए। सूद का कारोबार नहीं है मैम, जो मैं कह रहा हूँ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बैंक का जो काम होता है वो सूद का नहीं होता है। और दूसरी जो बात है जो शराब मुसलमानों के लिए नहीं है, वो खुद जो कारोबार की बात है, कारोबार वो खुद नहीं संभालते हैं, वो तो बाहर अपने जो है देश में, आपका जो मुल्क है वो अपने मुल्क में है, पाकिस्तान। अच्छा सैयद नूर भाई, ये जो बैंक जो आपकी एचबीएल बैंक है जिसमें आप कह रहे हैं कि वो बिजनेस है, सूदी कारोबार नहीं है, तो जो बैंक के कर्मचारियों को, जो एम्प्लॉयज को सैलरी मिलती है वो सूदी मिलती है या हलाल मिलती है? नहीं, सूद का जो कारोबार, सूद तो हराम है ना, सूद तो अल्लाह ने हराम किया है ना कुरान में, सूद तो अल्लाह ने हराम किया कुरान में, लेना देना लिखने वाला सूद को, वो सारा हराम है कुरान में, अल्लाह ने फरमाया उसके बारे में। तो वो जो सैलरी मिलती है एम्प्लॉयज को, वो क्या सूद है या हलाल पैसा है, क्या है वो? आपके कहने के मुताबिक ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है ये भी सूद खा रहा है। हाँ, ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है ना, इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो चल रहा है, तो ये भी गलत है आपके हिसाब से? तो सारे सूदी कारोबार गलत है ना भाई, हम सारे सूदी कारोबार को गलत बोल रहे हैं। तो फिर आप जो सूद से लेना देना जो अल्लाह ने हराम किया है, आप कह रहे हैं कि आपके हाजिर इमाम अहले बैत से ताल्लुक रखते हैं और ये सूदी कारोबार वो चला रहे हैं, बैंक चला रहे हैं, शराब का कारोबार कर रहे हैं, तो ये अहले बैत ने कभी किया है, ऐसा काम किया है कभी उन्होंने? जी नहीं किया। अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कभी वो गए हैं या नहीं गए? आपके मुताबिक ये जो एचबीएल बैंक के जो मुलाजिम है, इनको जो ये हराम कमा रहे हैं एचबीएल बैंक के। अरे मुलाजिम का छोड़िए, आप मुलाजिम का छोड़िए, मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ, एचबीएल जो बैंक है और आपके जो शराब का कारोबार का बिजनेस है आपके हाजिर इमाम का, वो कुरान में अल्लाह ने दोनों हराम कर दिया है, सूद लेना देना और सूद को लिखने वाला, तीनों चीज हराम है। तो अब मुझे बताइए कि जो सूदी कारोबार हैं, आप अहले बैत से बोल रहे हैं आपके हाजिर इमाम को, क्या अहले बैत ने कभी भी ये काम किया है या नहीं किया है? जी नहीं किया। सूद को उन्होंने लिया है, दिया है या नहीं दिया है, ये बात मुझे आप साफ करें। जी, उन्होंने होटल खोल के पाकिस्तानियों को दिया है, पाकिस्तानी चला रहे हैं। अरे मैं अहले बैत की बात कर रहा हूँ। अहले बैत ने ये कभी काम किया है? हजरत अली ने कभी ये काम किया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कभी काम किया है या नहीं किया है? जी नहीं किया है।
हाँ या ना नहीं किया, तो नहीं आपके हाजिर इमाम क्यों कर रहे हैं? आपके हाजिर ये भी इमाम क्यों कर रहे हैं? ये खुद नहीं कर रहे, उन्होंने पाकिस्तानियों को एक होटल खोल के दिया है। नहीं नहीं, खुद की, अरे भाई एचबीएल बैंक के ओनर हैं आपके हाजिर इमाम, सिरेना होटल्स के आपके हाजिर इमाम ओनर हैं, पार्टनरशिप में वो होटल चला रहे हैं। और मैं आपको और एक चीज बताऊं, आपके हाजिर इमाम का सुअर के गोश्त का कारोबार भी है, आपको पता ही है। आपके एकेडीएन जो ऑर्गेनाइजेशन है, एकेडीएन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सुअर का गोश्त का कारोबार करती है, ये पता है आपको? सुअर का गोश्त का कारोबार नहीं करती है, आपको किसने बताया ये? बहन जरा बता दीजिए स्क्रीन पर एकेडीएन। ओके भाई, एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं दिखा देती हूँ स्क्रीन पे। हाजिर इमाम फ्रेश पोर्क मीट बेचते हैं और ये एफिलिएशन हो गई है, आईपीएस का है। मैं स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, बात कंटिन्यू कीजिए जब तक स्क्रीन शेयर होती है। चले गए वो, चले गए? अच्छा चले गए, मैं फिर भी दिखा देती हूँ, जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं मैं स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। हाजिर इमाम की एकेडीएन की वेबसाइट है और वहां पर फ्रेश पोर्क बेचने की बात एफिलिएशन हो रही है, ये स्क्रीन पे चेक कर लीजिए। जिन इस्माइलियों को पता नहीं, ये एकेडीएन की वेबसाइट, सिर्फ इतना लिखिएगा एकेडीएन AKFED कीनिया फ्रेश पोर्क मीट, ये देखें, ये स्क्रीन पे आपके चल रहा है। नीचे देखिए फार्मर्स चॉइस एस्टैब्लिश इन 1980 सेल फ्रेश एंड प्रोसेस्ड पोर्क मीट इन कीनिया। हाजिर इमाम को क्या पड़ी है कि अपनी वेबसाइट पे पोर्क मीट की जो है वो एडवर्टाइज कर रहे हैं। नीचे कॉपीराइट लिखा हुआ है, गौर से देखिएगा, कॉपीराइट एकेडीएन गैरी ओट, और ये वेबसाइट ऊपर एकेडीएन की लिंक आपको सेंड कर देते हैं। इसके अलावा एक और चीज है वो भी दिखा देती हूँ, ये देखिएगा जी, लिंक्डइन पे फार्मर्स चॉइस है और फार्मर्स चॉइस का यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है The company changed hands again in 2000 when the Aga Khan owned IPS Group acquired by majority shareholder। ठीक, कि ये जो कंपनी है ये हाजिर इमाम ही ओन करते हैं। ऊपर देखें ये लिखा हुआ है पोर्क, बेकन, हैम, फ्रेश सॉसेजेस, और ये सब चीजें हाजिर इमाम की फार्मर्स चॉइस की मेजॉरिटी शेयर होल्डर की, ये इनकी। किसी को शक हो तो जरूर क्रॉस चेक कर लीजिए प्लीज। साथ ही साथ ये पोर्क का जो पकवान बनते हैं ये सिरेना होटल्स में भी मिलते हैं, जो शराब के साथ दिया जाता है वो भी उसके साथ में वो दिया जाता है खाने के लिए। चलिए जी, हमारे भाई सैयद नूर जा चुके हैं। एक डिस्कशन रहा आई ओपनर उन लोगों के लिए कि जिनको, अच्छा ये फिर लिंक मांग रहे नूरुद्दीन भाई। टाइम हो चुका, 36 मिनट डिस्कशन चला हमारा। आखिर में कुछ बातें अगर आपने कहनी है तो कर दीजिए, उसके बाद जो है इंशाल्लाह डिस्कशन जारी कीजिए। हमारे पास 10 मिनट और है। जी सैयद नूर भाई, आपने स्क्रीन पे चेक किया, हमने आपको दिखाया कि हाजिर इमाम जो है वो पिग का गोश्त बेच रहे हैं एक दिन, आपने देखा? जी जी, वो वेबसाइट गलत भी हो सकता है, वो वेबसाइट इमाम साहब तो खुद नहीं चला रहे, क्योंकि मेरे नाम से फेसबुक में अपना अकाउंट चला रहा हूँ तो उस पर कोई और भी मेरे नाम से फेक अकाउंट बना सकता है। इसी तरह वेबसाइट भी, मतलब हजारों, जो जिस तरह आप लोगों ने जो नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैन, क्या पेज, आपके पेज का नाम क्या है ये आप मुझे बता दें। अच्छा, मैं आपको पहले आपकी एकेडीएन जो आप कह रही है हाजिर इमाम की नहीं है और फेक है, इसका जवाब दे देती हूँ, आप जरा चेक इमाम का ये वेबसाइट गलत हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ। वेबसाइट दी है ना, वेबसाइट का लिंक दिया है नीचे, उसमें कॉपीराइट है, रजिस्टर्ड है और ट्रेडमार्क है। जी वो मैं देख रहा हूँ। तो मैं दो बात करना चाहूंगा। तो जिस तरह आप जो है नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैन हाजिर इमाम के नाम से फेक आईडी चला रही है, फेसबुक पे फेक पेज बनाया है आप लोगों ने, इसी तरह वेबसाइट भी लाखों फेक बन सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं आपसे बात करूंगा, मैं जो एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास इतना इल्म भी नहीं है। आप जो है मौलाना तारिक जमील साहब को मानते हो मेरे ख्याल से? क्या मानते हैं? नहीं, मौलाना तारिक जमील, नूर भाई मौलाना तारिक जमील की बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। हम ये बात कर रहे हैं कि जब आपके हाजिर इमाम अहले बैत से ताल्लुक रखते हैं, आप जैसे बता रहे हैं, तो ये सब कारोबार क्यों कर रहे हैं और क्या वजह है इसकी? मैंने आपसे ये सवाल पूछा था, आपने उसका जवाब नहीं दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया आपने, तो प्लीज इसका जवाब दे दीजिए ताकि नहीं करते ना, सूर का गोश्त नहीं बेचते ना। नहीं, शराब का कारोबार तो कर रहे हैं ना, सूद का कारोबार भी कर रहे हैं एचबीएल। अरे भाई वो ओनर है ना बैंक, एचबीएल बैंक के ओनर हैं, सिरेना होटल्स के ओनर हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं बात? यार आपको बात समझ क्यों नहीं आ रही? इमाम को आपने हाथों से शराब बेचते हुए आपने देखा है? अरे भाई देखिए, हाथों से शराब पिलाना जरूरी नहीं है। अगर आप, मेरा एक बिजनेस है और मैं बिजनेस आपको दे रहा हूँ, मैं शराब का, फॉर एग्जांपल मैं शराब का बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे चलाने किसको देना है? मैं खुद चला नहीं सकता, मैं आपको दे रहा हूँ चलाने के लिए, और मैं खुद ओनर हूँ उस होटल का, तो आप क्या करेंगे? आप बेचेंगे नहीं, शराब को नहीं बेचेंगे आप? उनको इस दुनिया की, मतलब ये पैसों से कोई गरज नहीं है, वो सिर्फ पैसा देते हैं। उन्होंने सिर्फ पैसा दिया है कि कारोबार करो बस। बाकी पाकिस्तानी, तो पैसा देना गलत, कारोबार करना ये गलत है ना भाई?
अहले बैत ने कभी किया है क्या गलत कारोबार में, कभी पैसा लगाया उन्होंने? क्या गलत नबी करीम कारोबार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत अली ने कभी उन्होंने तो तिजारत की है भाई, हलाल पैसा तिजारत की है। जो है रास्ते पे जो साहबा बैठकर जो है मक्के की गलियों में, साहबा गलियों में बैठकर चद्दर बेचा करते थे, हलाल पैसा कमाई करते थे, मेहनत मजदूरी किया करते थे। इन्होंने भी अभी शराब का, और शराब को तो जब शराब का हराम का हुक्म हुआ कि शराब अभी हराम हो चुकी है, ड्रम के ड्रम शराब सहाबियों ने बहा दिया। आपने अब आप बोल रहे हैं कि अभी अहले बैत से आपके हाजिर इमाम है और वो शराब का कारोबार कर सकते हैं, शराब का ये कारोबार जरा नहीं कर कॉन्ट्रडिक्शन हो जा रहा है भाई। सकते। उन्होंने सर जी में ये हाँ तो कहने क्यों की कर रहे हैं कोशिश भाई? कर, उन्होंने तो पैसा मतलब वो दिया अहले बैत से नहीं है ना, मतलब हाँ तो अहले अहले बैत बैत से नहीं है ना, मतलब वो पैसा भी दिया तो हराम है, गलत है ना भाई। सर, उन्होंने ये नहीं कहा है शराब का कारोबार करो कह के पैसा नहीं दिया है। इन्होंने कहा है पाकिस्तान को ऊपर ले जाने के लिए पाकिस्तान में जो है इंटरनेशनल सतह का एक होटल की जरूरत है, पाकिस्तान में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए वो काम कर रहे थे। उन्होंने कहा ये लो पैसा होटल का कारोबार करो, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये लो पैसा शराब का कारोबार करो, ये उन्होंने अपने मुंह से कभी नहीं बोला। और दूसरा मैं आपको एक बात हाँ बताना चाहूँ, तो जो पैसा लगा रहे हैं आपके, मेरे पास इल्म की भी कमी है क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। आप तारिक जमील को सुनिए, वो अहले बैत के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि तारिक जमील एक जो है स्कॉलर है, बहुत बड़े स्कॉलर है, वो पढ़ा लिखा भी है, स्कॉलर भी है। आप उनके बयान सुनिए वो अहले बैत के बारे में क्या कहते हैं। और आप वेबसाइट नहीं पे नहीं, जाइए IIS इंस्टीट्यूट ऑफ इस्माइली स्टडी लंदन, आप खुद देखिए असल जो है इस्माइली क्या है, वो आपको ओरिजिनल खुद देखिए, बाकी जो नहीं चीज़ है नहीं, वो फेक है। ये जो अच्छा ये सीरेना होटल्स में जो शराब बिक रही है, आपके हाजिर इमाम के पैसे लगे हुए हैं, वो फेक है। वो फेक नहीं है भाईजान, इमाम को वो उधर लंदन में बैठे हुए हैं, खान साहब लंदन में बैठे तो हैं। पैसा भी गलत कारोबार में लगाना हराम है ना भाई। आप कराची में बैठे हैं, मैं गिलगित में बैठा हूँ, आप मुझे पैसे ट्रांसफर करते हैं, आप कहते हैं होटल चलाओ, मैं उधर कोई दूसरा मतलब गलत कारोबार करता हूँ, शराब खाना खोलता हूँ, कोई और दूसरे दोनों हाँ काम करता हूँ, तो आपको हाँ क्या पता बराबर, कि हाँ आपके पैसे से गलत। अच्छा मेरे भाई अस्सलाम वालेकुम। अगर आगा खान साहब जो है उसको ये नहीं मालूम है कि मेरे जो पैसे जा रहे हैं उससे शराब बेची जा रही है, तो फिर इस्माइली का जो अकीदा है कि हमारा इमाम अकले कुल है, उसको हर चीज़ की पता है, तो जब उसको ये नहीं पता चल रहा है कि उसके पैसे से शराब बेची जा रही है, तो जो दुआ आप जमात खाने में मांग रहे हो उसका उसको कैसा पता चल जाता है? उनको पता नहीं चलता है क्या? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल जाता था क्या? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में बैठे थे, अरब में मदीना में बैठे थे, मदीना में तो होते थे, मेरे मक्का में भाई होते थे। यहाँ पे जो है देखिए एक चीज होती है उसका नाम है अक्ल, ठीक है, अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई तो उसके अंदर जो है फायदा होगा। आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, लेकिन हजरत अली के बारे में जो अहले बैत तारिक जमील साहब ने बोला है, तो कभी तारिक जमील साहब के वीडियो में कमेंट डाल के पूछिए कि आपका अहले बैत से मतलब क्या है, तो आपको अहले बैत के बारे में बताएंगे कि अहले बैत हकीकत में है कौन। और जहाँ तक बात रही है आगा खान साहब की, तो मेरे भाई मैं इस्माइलियों का इमाम की हिस्ट्री पढ़ाता था, और अगर मैं आपको बता दूं 28वें इमाम जिसका नाम था हसन, और उसको बोला जाता है हसन अला जिक्री सलाम, वो एक दाई के बेटे हैं, वो इमाम के बेटे नहीं थे, और वहीं से ही जो है ये नस्ल खत्म हो गई है। तो ये जो इमाम हसन अल्लाह जिक्री सलाम है, उन्होंने कहा था कि इमाम ने मुझे अपना रूहानी फर्जंद बनाया है। तो ये जो अभी के आपके इमाम है वो अहले बैत के वंश में से भी नहीं है, अहले बैत तो दूर की बात है। तो पहले जो है आप थोड़ा हिस्ट्री को देखें। देखिए आप रेजिस्टेंस करना या लड़ाई करना या आपको नीचा दिखाना या हमको ऊपर दिखाना ये मकसद नहीं है। यहाँ पे मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने हमको अक्ल के साथ पैदा किया है, तो हमें उसका इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई। जो आप कह रहे हैं वो एक दाई के बैठे थे, ये भी आप गलत कह रहे हैं। ये जो अहले बैत का जो सिलसिला चलता आ रहा है, ये आले रसूल, ये कोई दाई का बेटा नहीं था। जो 28वें इमाम थे, वो मैं आपको सारे इमामों के नाम अभी पढ़ के सुना सकता हूँ, वो कोई दाई के मेरे बेटे नहीं भाई थे। वो जो इमामों के नाम आप अपने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके जो हुंजाई की किताब है, वो हुंजाई की किताब के अंदर ये चीज लिखी है, और जो है इस्माइली के स्कॉलर थे, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये चीज। और दूसरी है चीज, उसको अच्छा और एक चीज मैं आपको बता दूं, अच्छा अभी और आगे मैं आपको लेके जाऊं, तो और आगे की हिस्ट्री ये है कि आपके जो 5वें इमाम है उसका नाम था जाफर अस-सादिक, और आपके जो 6ठे इमाम है उसका नाम था हजरत इस्माइल। आप जो है कहीं पे भी देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा, जो आपके 6ठे इमाम है वो 5वें इमाम से 11 साल पहले दुनिया से इंतकाल कर गए थे।
तो फिर जब एक आपके इमाम पास जिंदा है, भाई मैं हिस्ट्री पढ़ाता था, द हिस्ट्री ऑफ इस्माइली इमाम्स, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और ये आपकी हिस्ट्री के अंदर भी आपको मिलेगा। मैंने मतलब गलत आपके नहीं कहने पढ़ी, का मैंने तो पढ़ा ही है। आपके कहने का मतलब है हजरत जाफर सादिक के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनसे अपने वालिद से पहले वफात कर चुके हैं। बेशक, और ये जो है ना, आपको ये हिस्ट्री खाली आपके कहने का इस्माइलिज्म में मतलब नहीं मिलेगी, ये हिस्ट्री आपको इश्नासरी के अंदर भी मिलेगी, और इसीलिए इश्नासरी ने मूसा काजिम को अपना इमाम माना। ये हिस्ट्री आपको आम सुन्नी के हिस्ट्री में भी मिलेगी, और जो है एक कॉल के मुताबिक 11 साल है और दूसरे कॉल के मुताबिक 3 साल है। आप चेक कर लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, आप उसकी स्टडी कर लीजिए। हमारा यहाँ पे मकसद आपसे आर्ग्यूमेंट करना, मैंने पहले भी बोला, आपको नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हर एक इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, वो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करे और गौर फिक्र करे, और फिर अल्लाह से मांगे कि अल्लाह जो सीधा रास्ता है वो मुझे दिखा दे। बाकी अगर आप ये कहेंगे कि भाई मुर्गी को एक ही टांग है, तो हम वो मानने के लिए भी तैयार है। भाई हम आपसे आर्ग्यूमेंट करना नहीं चाहते, हम तो खाली ये चाहते हैं कि आप खुद गौर फिक्र करें। मैं भी आर्ग्यूमेंट करना नहीं, मैं भी यही कहता हूँ कि जो मुस्लिम होने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो मैं मानता हूँ सारा कुछ। तो नहीं आपको सईद नूर भाई, तो जो सबसे पहली मेरे भाई जरूरी चीज है वो है कि अल्लाह का कलाम, जिसने हमको पैदा किया, हम कुछ नहीं थे, वो चाहता तो हमको पत्थर बना देता था, हमारी कोई औकात नहीं थी, हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया था कि आप हमको इंसान बनाओ, लेकिन वो अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। और अल्लाह कुरान के अंदर फरमा रहा है कि हमने इंसान और जिन्नात को पैदा नहीं किया सिवा कि वो हमारी इबादत करे। आप अपने दुआ के अंदर पढ़ते हो, इय्याका नअबुदु, या अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। लेकिन जैसे ही 5वां पाठ आता है, आप जो है हजरत अली की और हजरत नबी साहब की इबादत शुरू कर देते हो। आप पढ़ते हो व इय्याका नस्तईन, और वहां पे जो है या अल्लाह हम सिर्फ तुझी से ही मदद चाहते हैं। जैसे ही दुआ खत्म होती है, आप इमाम साहब के पास मदद मांगते हो। तो अल्लाह से वादा करके जब अल्लाह से वादा मेरे भाई तोड़ा जाता है, तो वो चीज से अल्लाह राजी तो नहीं होगा ना मेरे भाई। जी जी आप ठीक कह रहे हैं, और मगर इमाम साहब कितने भी अच्छे रहने दो, कितने भी मासूम रहने दो, कितने भी पाक रहने दो, लेकिन नौजुबिल्ला वो खुदा तो नहीं है ना, वो अल्लाह तो नहीं है ना। हमारे नबी जो है, हमारे हजरत अली जो है, उन पे हमारे माँ बाप कुर्बान, लेकिन उसके पास उसकी हम इबादत तो नहीं कर सकते है ना मेरे भाई। वो तो अल्लाह का हक है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमा खलक़तुल जिन्नी व इंसी इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ इसीलिए पैदा किया कि वो हमारी इबादत करें। तो इस चीज पे तो हमें गौर करना पड़ेगा ना, हमारे पास अक्ल है ना जी मेरे जी भाई। जी जी आप सही कह रहे हैं, हम अल्लाह ताला की ही इबादत करते हैं। और आपने जो बात कही थी कि मुस्लिम कोई गलत काम नहीं करता, आप भी कुछ सही आईडी बना के वो करें ना, ये इमाम के नाम से खान के नाम से फेक आईडी बना सवाल के ये आईडी करें, में ये गलत यहाँ है। पे जो है मेरे भाई, नहीं सुनो मेरे भाई, यहाँ आगा खानिज्म जो है वो आपको हाईलाइट, उसमें आईडी, मेरा नाम जो है सब सही है। आपको चाहिए तो मैं आपको मेरा नंबर भी दे दूंगा, मैं एडमिन को कहूंगा मेरा नंबर आपको दिया जाए, हम दोनों भाई इंशाल्लाह बात करेंगे। सवाल वो आईडी का या सवाल फेक आईडी का वो नहीं, सवाल ये है कि जहाँ पे हक है ना भाई, एक चीज होती है हक, एक है बातिल। हक जहाँ से मिले, हक जहाँ से मिले ले लेना चाहिए। आपसे मिले मुझे ले लेना चाहिए, किसी और से मिले तो भी ले लेना चाहिए। हक हक होते। तो खाली हमारी यही आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आपसे जो ये नूरल्लाह भाई भी जो बात कर रहे थे, उनका भी कोई ये मकसद नहीं है। देखिए इमाम साहब जो करते हैं उसका जवाब इमाम साहब को देना है, आप जो करेंगे आपको जवाब देना है, मैं जो कर रहा हूँ मुझे जवाब देना है। लेकिन असल मकसद ये है कि कहीं ये ना हो मरने के बाद पता ये चले मानना था अल्लाह को और मान क्या है किसी और को, फिर वहां पे खून के आंसू भी रोएंगे तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा ना मेरे भाई। ये बात है असल। बाकी देखिए अल्लाह ने अकल दी है, मर्जी आपकी है। आप अपनी खबर में जाएंगे, मैं अपनी खबर में जाऊंगा, अपने माल का मैं हिसाब दूंगा, अपने माल का आप हिसाब देंगे, फिर आप ये तनकीद क्यों करते हो जो फेक आईडी चलाते हैं? इसीलिए करते हैं क्योंकि हमको अल्लाह ने कहा है कि हे ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को दोजक की आग से बचाओ जिसका ईंधन है इंसान और पत्थर। और अल्लाह के फजल से हम भी इस्माइली थे। एक मिनट सुन लीजिए ना मेरे पे, हम भी इस्माइली थे, ठीक है, और पूरे इस्माइली हमारे अहलो अयाल है। तो हमको जब अल्लाह ने जो है हिदायत दी है तो पूरे इस्माइलियों के लिए हमारी फिक्र है और मरते दम तक रहेगी। और आप बोले या ना बोले, हम तो आपकी फिक्र इंशाअल्लाह मरते दम तक करते रहेंगे, क्योंकि मेरे अल्लाह का ये हुक्म है। और हम तो जो है दुश्मन को भी आग में ना जाने दे, तो आप तो हमारे अपने हैं मेरे भाई, कैसा जाने देंगे सोचिए। अच्छा, आप इस्माइली थे बाद में सुन्नी हो गए हैं? बिल्कुल सही फरमाया आपने।
बस फिर आपकी जो है ज़हनी मेयार इतनी तक थी, आपकी ज़हन इतनी थी, छोटी सी ज़हन, आप बस समझ ना पाए। बाकी जो उधर भी हो आप ठीक हो, उधर भी कुछ तरीके गलत है। ये जो प्रोग्राम है ना वो लाइव चल रहा है मेरे भाई, और मेरी जो बात है और आपकी जो बात है ये सारी चीजें पूरी जो भी व्यूवर्स है सब सुन रहे हैं, और यहाँ पे जो है अल्लाह के फजल से सबको पता चल जाएगा कि किसका जहन कितना छोटा है, कौन हक बात कर रहा है, कौन बातिल बात कर रहा है। भाई मैं आपको सीधा जी बोलिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं अहले तशरीह को गलत नहीं कह रहा हूँ, सारे ही मुसलमान हैं, अलबत्ता कुछ इबादत के तरीके गलत, वो गलत नहीं है, मतलब अलग अलग है सबके। हमारा जो मेरे भाई बात ये होती छोड़ के पढ़ते मतलब तरीके कुछ अलग है, बाकी सब मुसलमान है, सुन्नी भी मुसलमान है। बात ये होती कि भाई जो मुसलमानी है तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, लेकिन जब पूरे अकीदे ही गलत है तो वहां पे तो फिर क्वेश्चन मार्क आएगा ना मेरे भाई। जब जहाँ पे एक तरफ हम दुआ के अंदर पढ़ रहे हैं कि हम अल्लाह की ही इबादत करते हैं, दूसरी तरफ हम तस्बीह 5वें पाठ में अली की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकालते हैं, हम दुआ में पढ़ते अल्लाह से ही मदद मांगते हैं, दुआ खत्म होते ही हम इमाम साहब से मदद मांगते हैं, हमारा अल्लाह कुरान में कहता है कि हम जो है यकीनन मुर्दों को जिंदा करेंगे, और हमारा जो अकीदा बना के बैठे असल में वासिल हो जाएंगे। अल्लाह जो है कहता है कि जो है हम तुमको जन्नत में डालेंगे, इस्माइली अकीदा बना के बैठे वो सब जो है वो सिंबॉलिक बातें हैं। तो ये तो पूरी चीजें एक तरफ वेस्ट है तो एक तरफ ईस्ट है ना मेरे भाई, ऐसा कैसा चलेगा? जी आप ठीक कह रहे हैं, मगर प्रोग्राम में मैं सुन रहा था अल्लाह का हुक्म है कि ज़कात दो 2.5%, और एक तरफ इमाम साहब कहते हैं मुझे 12.5% दे दो। एक तरफ अल्लाह कुरान के अंदर नमाज पढ़ो 700 दफा कहता है, हदीस के अंदर 7000 दफा आया है नमाज पढ़ने का। नमाज पढ़ने का तरीका मेराज की रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह के पास से नमाज लेके आए थे, तो जो नमाज लेने गया था उसको ज्यादा पता है नमाज कैसा पढ़ना है, या तो फिर 200 साल पहले देने वाले अली शाह को पता है कि नमाज कैसे पढ़ते हैं। और हमारे बाप दादा की जो दावत की थी मेरे भाई वो पीर सदरुद्दीन ने की थी आज से 800 साल पहले। ये जो दुआ आई 200 साल हुए तो 600 साल हमारे बाप दादा ने क्या किया था? दुआ तो थी नहीं। आप अगर हसन अली शाह की हिस्ट्री उठा के देखे वो नमाज पढ़ते थे, आप अली शाह की हिस्ट्री उठा के देखे वो नमाज पढ़ते थे। जी जी पढ़ते थे, बेशक पढ़ते थे। तो अगर वो दुआई नमाज होती थी तो फिर जो है वो नमाज क्यों पढ़ते थे? दुआ पढ़ना चाहिए था उनको। बात ये है कि हाथ जोड़ के नमाज पढ़ते हैं, बाज हाथ छोड़ के पढ़ते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हाथ छोड़ के पढ़ना सही है या हाथ जोड़ के पढ़ना सही है? असल ये है आप चाहे हाथ छोड़ के, बगैर हाथ है ना उसकी भी नमाज हो जाती है मेरे भाई। तो ये जो है ना हाथ छोड़ के पढ़ो, हाथ जोड़ के पढ़ो, लेकिन असल मकसद ये है कि तुम सजदा किसको करते हो। अगर तुम जो सही में अल्लाह को सजदा, अल्लाह जो है ना वो तुम्हारे दिल की नीयत देखता है। बाकी तो जिसको हाथ नहीं है उसकी भी नमाज होती है, जिसको पैर नहीं है उसकी भी नमाज होती है। असल जो है वो अकीदा है, असल जो है वो ईमान है मेरे भाई। तो एक बार ईमान अल्लाह पे आ जाएगा ना फिर तुम हाथ जोड़ के भी पढ़ोगे तो कबूल करने वाली जात वो है, अगर तुम हाथ छोड़ के भी पढ़ोगे तो कबूल करने वाली जात वो है, अगर तुम हाथ सर पे रखोगे तो कबूल करने वाली जात वो है। तो वो तो अल्लाह पे है ना, हमारा काम है नमाज पढ़ना, कबूल करना उसका काम है। लेकिन पहले हम ये तो देखें कि हम इबादत कर किसकी रहे हैं ना। हाथ छोड़ने वाला भी एक अल्लाह की इबादत कर रहा है, हाथ बांधने वाला भी एक अल्लाह की इबादत कर रहा है, तो फिर कबूल करना उसके हाथ में है, हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले। लेकिन यहाँ पे मसला ये है हाथ छोड़ने का और हाथ जोड़ने का नहीं है, मसला तो ये है कि वो अल्लाह की इबादत नहीं करके दूसरे की करना, और उसी को तो कुरान ने शिर्क कहा है ना मेरे भाई। उसी के लिए तो अल्लाह ने कहा है कि तुम दुनिया के कोई भी गुनाह लेके आओगे तो मैं चाहूंगा तो माफ करूंगा, लेकिन शिर्क लेके आओगे तो मैं माफ नहीं करूंगा। तो यही तो असल मसला है ना मेरे भाई। यहाँ पे हाथ जोड़ना, नमाज, ये तो बात की बात है, पहले अकीदे तो ठीक कर ले हमारे, एक उस पे तो आ जाए कि एक अल्लाह की इबादत करना है। जी जी हम अल्लाह की इबादत करते हैं। तो हाँ करते हैं, 5वें पाठ में ही वादा तोड़ दिया ना। 5वें पाठ में कौन सी तस्बीह आप निकालते हैं? या अल्लाह निकालते हैं, सुभान अल्लाह निकालते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह निकालते हैं, कौन सी तस्बीह है 5वें पाठ में? यार आप 5वें पाठ में जो ये 5वें पाठ में जो ये पढ़ते हैं या इमाम ज़मान या मौलाना अंत कुव्वती व अंत सनदी। उससे पहले भी जो तस्बीह निकालते हैं, नहीं नूरुल्लाह भाई, इससे पहले जो 11 दफा तस्बीह निकालते हैं, तस्बीह इबादत है ना। वो किसकी तस्बीह निकालते हैं? किसकी तस्बीह आप निकालते हैं? क्या अल्लाह की निकालते हैं?
तो ये हो गया, एक पहले पार्ट में वादा किया, 5वें पार्ट में तोड़ दिया, ऐसा थोड़ी ना चलेगा मेरे भाई। हम या रसूल भी कहते हैं। हाँ तो या अली या मोहम्मद की तस्वीर नहीं निकालते आप? तो निकालते आपके या हिसाब रसूल। से क्या हजरत अली नहीं, हजरत अली और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दोनों नौजुबिल्ला अल्लाह थे? ये हाँ हाँ, अली मत पढ़ते हैं जी। नहीं, हजरत अली और हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजुबिल्ला क्या ये दोनों अल्लाह है? मेरा सवाल नहीं, ये है आप, अल्लाह अगर नहीं अल्लाह है। नहीं है तो आपने पहले पार्ट में कहा कि या अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तो फिर 5वें पार्ट में आप या लिया मोहम्मद की तस्वीर क्यों निकालते हो? वादा उनकी इबादत खिलाफी हो गई ना ये तो, उनकी वो ये तो तो वादा अल्लाह की खिलाफी हो गई ना। अल्लाह की इबादत अलग है। रसूल तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद इबादत क्या है? आप इबादत किसको बोलते हैं? आप या अल्लाह यानी अल्लाह का जिक्र करते हो, उसको तो इबादत बोलते हैं ना मेरे भाई। इबादत का मतलब क्या है? अल्लाह की इबादत और चीजें, आप रसूल को याद करते हो वो अलग चीज है। अरे मेरे भाई आपने वादा ये किया भाई, तस्बीह निकालना इबादत है ना यार। आप उतने भी तो छोटे नहीं, आप माशाल्लाह बातों से तो अक्लमंद दिखते हो यार। जी, या वहाँ भी पढ़ते हैं अल्लाह आओ मेरे समझ। भाई, या वहां पढ़ते हैं, लेकिन इसमें ये है आपने वादा क्या किया पहले पार्ट में? या अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि तुझे छोड़ के हम किसी की इबादत नहीं करते, चाहे वो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, चाहे वो हमारे हजरत अली अलैहि वसल्लम हो, चाहे हमारे ये पाक इमाम जमान हो, हम किसी की इबादत नहीं करेंगे, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। ये आप वादा पहले पार्ट में करते हो, लेकिन 5वें पार्ट में आके वादा तोड़ देते हो, तो ऐसा तो नहीं चलता है ना मेरे भाई। अल्लाह ने हमको अक्ल दी है ना, वो तो इस्तेमाल करना पड़ेगा ना यार। तो यहाँ पे जो है मेरे भाई सैयद भाई, ये आप थोड़ा गौर फिक्र करें। अगर आपको 1 to 1 बात करना है तो मैं एडमिन को बोलूंगा, इंशाल्लाह मेरा नंबर आप तक पहुंचा देंगे। पर यहाँ पे हमें कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, ना आपको हमसे दुश्मनी है, ठीक है ना मेरे भाई। थोड़ा गौर व फिक्र करे और वो एक काम करे ना, अल्लाह से मांगे, या अल्लाह तू मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। मैं तो स्टूडेंट हूँ और मैं सीखना चाहूँ, और आपकी तलब है बोल के मैं सुन रहा था, लेकिन आपकी तलब देख के मैं बीच में बोला। बाकी मैं आपकी जो है डिबेट दोनों की सुन रहा था, माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और आप हिम्मत करके वापिस आए, डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो मैं आपको जो है सलाम करता हूँ। और आपको जज्बा है सीखने का, और मैं आपको रियली लाइक करता हूँ। मैंने तो आपको देखा नहीं है, बट आई लाइक यू, ठीक है। तो मेरी खाली गुजारिश आपको यही है मेरे भाई, थोड़ा गौर व फिक्र करें इंशाल्लाह, ठीक है ना भाई। क्योंकि आखिरत की जो जिंदगी है ना मेरे भाई, वो अबदा अबद हमेश हमेश रहने की है। या तो जन्नत में रहना है, या दोजख में रहना है, या आग में रहना है, या बाग में रहना है। तो ये टेस्ट है, ये दुनिया की जिंदगी नहीं है, ठीक है। तो वो आखिरत की जिंदगी हम थोड़ी सी मजा के लिए या थोड़े से स्टेटस के लिए क्यों खराब कर दे? उसके ऊपर थोड़ा गौर फिक्र करे, कुरान शरीफ पढ़े, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़े। क्योंकि दुआ के अंदर आप जो दूसरे पार्ट में पढ़ते हैं, उसके अंदर पहले है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह, हे ईमान वालो इताअत करो अल्लाह की, व अतीउर रसूल, बाद में इताअत करो रसूल की, और फिर व उलिल अम्रिल मिनकुम है, बाद में इमाम साहब आया ना। तो पहले आप कुरान पढ़े, उसकी स्टडी करें, बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़े, और उसके बाद इमाम ज़मान के फरमान पढ़े। बट आप ऐसा करेंगे, खाली इमाम के फरमान को लेंगे, बाकी दो को, जो अल्लाह का पहला हुक्म है उसको छोड़ देंगे, दूसरा हुक्म है उसको छोड़ देंगे, तो फिर हम गफलत में चले जाएंगे ना भाई। बहुत अच्छी डिस्कशन चली है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कुछ सीखने को मिला। गौर व फिक्र करने के लिए अली भाई ने बहुत अच्छी बात की। तमाम इस्माइली हजरात से, हमारे भाई बहनों से गुजारिश है कि अली भाई की बात को गौर कीजिए। नूरुल्लाह भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मौलाना कासिम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जितने भी पैनलिस्ट इस चीज़ में आज इस प्रोग्राम में शामिल रहे, हमें सपोर्ट की, हमारे बैकअप बन के रहे। अल्लाह पाक इन सबको जो है वो अजर अजीम अता करें।